Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. How's your preparation going on? I hope you're putting your heart and soul. It's all about consistency, right? So please ensure that if you are sincerely working hard regularly, effort in the right direction, you will definitely do the exam well. So let's get started on this beautiful note. My name is Juhi Narula. So in this video, we are going to solve science-based passages. That's the agenda for today. So there is no out of the way different strategy, but you need to just keep in mind that you have the right temperament while you are dealing with the पैसेज दैट यू गेट राइट क्योंकि होता क्या है कि साइंस बेस्ड पैसेजेस में कई बार इतनी टेक्निकलिटी होती है जो हम समझ नहीं पाते हम पकड़ नहीं पाते सो उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता पैसेज को एक्सप्लोर करने का और क्वेश्चंस तक पहुंचने का सो द इम्पॉर्टेंट सजेशन विच आई ऑलवेज गिव अब तो हम ऑलमोस्ट लास्ट सेशन पे हैं आज कि मैपिंग ज़रूर करिए यूज स्क्रैच पेपर दैट विल हेल्प यू कीप फोकस इन द एक्चुअल पैसेज दैट यू आर सॉल्विंग राइट तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिस्कशन अबाउट what is the aim or objective of writing, right? So just don't worry too much about the details. Say you get a very technical term, don't get overwhelmed कि अच्छा इस technical term का तो मुझे मतलब ही नहीं पता, इस word को तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, definition से मैं familiar नहीं हूँ. Of course जो examiner है जो paper set कर रहे हैं उनको भी पता है कि people are not coming from scientific backgrounds having good science knowledge, right? So it is fine when you have this in your mind clearly कि अच्छा एक एक definition को thoroughly interpret karna is not important, so you will be slightly more relaxed and more comfortable while you are dealing with the passage, right? So like I said कि in case अगर बहुत ही intimidating लग रहा है तो just for some technical passages you could read the second time and this time to get better understanding you could write the outline of the passage like I say कि एक crux लिख लीजिए, right? कि अच्छा this is the first paragraph is talking about a theory, introducing the theory. Don't get into the details, don't put this pressure कि एक एक detail मुझे अच्छे से याद रहनी चाहिए. It's not possible. Okay, second paragraph is talking about the limitations of this theory. So limitations, the question comes, we'll revisit, right? The third is talking about possible solutions. So the third paragraph is talking about solutions. So आपको flow of the idea समझ में आ गया, structure समझ में आ गया, intent समझ में आ गया author की writing का, तो specific questions के लिए revisit कर लेना उन certain paragraphs पे बिकॉज आपने मैप करके की टर्म्स को आइडेंटिफाई कर रखी हैं एंड यू नो वेयर टू रिविजिट, राइट? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सी वेयर टू गो फॉर द आंसर. लाइक व्हाट आई ऑलवेज से दैट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू शुड रिविजिट, सो द आइडिया इज यू शुड नो वेयर टू गो बैक, राइट? एंड दिस इज अ मेंटल हैक, लाइक एक एक्स्ट्रा सजेशन है जो स्पेसिफिकली उन पैसेजेस के लिए है जो आपको पढ़ने में थोड़े मुश्किल लगते हैं. तो अपने आपको ये कन्विंस करना है, ये फेथ देना है कि यार आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, राइट? आई वुड रियली enjoy doing it. Just a mindset if is aligned properly, then you know most of the problems get sorted, right? So come with an open mindset, go with an attitude to learn, टू गेन नॉलेज, तो मज़ा आने लग जाए आपको. सो तब तो मज़ा आने लग जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं. ठीक है जी. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सॉल्व वन पैसेज एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. So one proposal for preserving rainforest is to promote the adoption of new agricultural technologies, right? Such as improved plant variety. So the author has given the example. Pay attention to the transition words I keep on repeating, such as improved plant varieties and use of chemical herbicides, which would increase productivity and slow deforestation. So what will be the outcome? The outcome will be that the productivity would increase and the deforestation ka process would become slower. By how are we planning to do it? By reducing demand for new cropland. Studies have shown, the question I what have studies reflected? We could possibly come here and get the answer. Studies have shown that farmers in developing countries who have achieved certain level of education, wealth and security of land tenure are more likely. So who is more likely to adopt the new technologies? Specifically those farmers who are in developing countries जिनको कुछ level of education है, have certain wealth and security of land tenure, they will be able to adopt such technologies. That's the output of what studies exhibit. But so again focused on transitions, but these studies have focused on villages with limited land. तो focus कहाँ पे हुआ है? मतलब ये जो observation है, ये जो result निकला, यहाँ पे कहाँ पे focus था? On villages with limited land that are tied to market economy. So
You have to understand this condition rather than on the relatively isolated self-sufficient communities with ample land characteristics of rainforest regions. तो कहाँ पे studies हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, जहाँ पे villages with limited land हैं and they are tied to market economy rather than, बजाय किसके, on the villages that are socially isolated and relatively more self-sufficient, which have ample matlab sufficient land characteristic, right? Just see what the flow is, how the flow is going like. So what is the proposal that has come, right? What is the possible outcome that is expected? What are studies reflecting? स्टडीज कौन से ग्रुप पे फोकस कर रही हैं, कौन से पे नहीं कर रही हैं. तो जब आप दिमाग में क्या करते हो, क्वेश्चंस बनाने लग जाते हो और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसेज को रीड कर रहे हैं, हमें एक्टिव रीडिंग करनी है. एक्टिव रीडिंग का मतलब वी आर फुली इन्वॉल्व वाइल वी आर reading the passage. So what you can do is you can think of that what can be the possible questions that can be created. At times you might think इतना simple question तो नहीं आएगा, but that will keep you more involved. मतलब it cannot be as direct that what is the proposal like, but when you are paying attention to this idea that what is the possible question that can emerge, that is keeping you involved with the discussion that is happening around, and that involvement will help you decode the difficult questions, right? चलिए let's read further. Let's try reading it. आप एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़िए. Try to get into the rhythm of the discussion. So again see there is this statement, a recent study. So focus. तो देखो जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, a recent study of Twaka people of the Hondrum rainforest. तो एक स्टडी हुई है, किस पे स्टडी हुई है? On these people, Twaka people of this rainforest, that farmers with some formal education were more likely. तो ये पहले भी एक डिस्कशन में पॉइंट इमर्ज करके आया कि the study will be applicable to the people who have some formal education. So the farmers जिनके पास कुछ formal education था, they were more likely to adopt improved plant varieties but less likely to use chemical herbicides, and that those who spoke Spanish were more likely to adopt both technologies. तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या करेंगे, इम्प्रूव प्लांट वैरायटीज को तो एक्सेप्ट कर लेंगे पर केमिकल हर्बिसाइड्स को नहीं करेंगे, या कम पॉसिबिलिटी है. नहीं करेंगे तो नहीं बोल रहा, बट देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी फॉर द सेम, राइट? अब लेट्स सी फर्दर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट. एंड देन दिस इज सेइंग दैट पीपल हु स्पीक स्पेनिश, the language of the market economy, were more likely to adopt both technologies. So non-land wealth was also associated with more adoption of both technologies. But availability of uncultivated, so what is the condition here? That has been provided, right? But the availability of uncultivated land reduced the incentive to employ the productivity enhancing technologies. So what is reducing the intensity, the incentive, what is the condition that is presented here? So this is availability of uncultivated land. So this is reducing the incentive to employ the productivity enhancing technologies. Researchers also measured land tenure security. तो land tenure security को idea author build कर रहा है. In Twaka society, kinship ties are a more important indicator of this than our legal property rights. So researchers measured it by a household duration of residence. So researchers ने कैसे measure किया? How did the researchers measure? They measured it by household duration of residence in its village. What did they find out? What was the observation? That's here. They found out that longer residence correlated with more adoption of improved plant varieties but less adoption of chemical herbicides. So again they found out कि जो longer residents थे, they could again correlate that they will be able to pick up the improved plant varieties, but they were slightly hesitant, or there is less possibility of the adoption of chemical herbicides. So that's the idea that's coming out again. So that's the passage all about. Now let's come to the first question and see what is the question trying to ask. Read the question nicely. I'll give you good time. Do it side by side, right? Simple passage, nothing very fancy.
all you have to do is focus well on understanding the question because that's very very important, right? तो अच्छे से question पढ़ो, options को explore करो and see what would you pick up as the right answer. क्योंकि question is technical and you could see the answer choices also. So बहुत सारा लिखा हुआ है answer choices में. So let's take a look at the first question. The passage suggests. So passage suggests matlab the information has to be extracted from the passage, right? Take a look at the question. That in the study mentioned for gathering information about security of land tenure reflects which of the following pairs of assumptions about Twaka society. तो specifically Twaka society की बात कहाँ पर हुई थी? इस पैराग्राफ में हुई थी, right? कि the recent study of the Twaka people. तो यहाँ पे revisit कर लो, right? कोई प्रेशर मत लो कि अच्छा अभी तो पैराग्राफ पढ़ के आए थे, अभी कैसे रिविजिट करें, इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना. एट टाइम्स क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियल सी हो जाती हैं, उसकी वजह से प्रेशर बिल्डिंग होती है. तो देयर इज नो हार्म, प्लीज गो बैक इफ नीडेड, राइट? सो यू कैन सी कि ये लोग हैं यहाँ पे का जो फॉर्मल एजुकेशन है, दे आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट इम्प्रूव प्लांट वेराइटीज, पर उनको केमिकल हर्बिसाइड्स वाली नहीं करेंगे, और जो स्पेनिश बोल रहे हैं वो दोनों को अडॉप्ट कर लेंगे. तो नॉन लैंड वेल्थ पे पॉइंट क्वेश्चन इमर्ज्ड है. दिस वाज associated more with the adoption of both technologies, but यहाँ पे condition क्या थी कि जो availability of uncultivated land है, that reduce the incentive to employ the productivity enhancing technologies. तो आपके पास availability of uncultivated land है, जिसकी वजह से आपकी जो अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि अनकल्टिवेटेड लैंड की, तो उससे क्या हो रहा है, दिस इज रिड्यूसिंग द इंसेंटिव in order to employ the productivity enhancing technologies. तो researchers measured land tenure security. तो उन्होंने लैंड, अब स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप आओगे तो क्वेश्चन किसके अराउंड है? आई जस्ट गो बैक. क्वेश्चन इज अराउंड for gathering information about security of land tenure, right? तो क्वेश्चन क्या पे है? about security of land tenure. तो आप स्पेसिफिकली उसी स्टेटमेंट पे आओ एंड जस्ट फोकस हियर नाउ, क्योंकि अब आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपका फोकस कहाँ है? इसी स्टेटमेंट से आंसर आना है. तो वी हैव द राइट पर्सपेक्टिव वेयर टू हिट बैक टू गेट आवर स्टेटमेंट राइट. सो यू कुड जस्ट रीड दिस नाइसली. Researchers measured land tenure security in this particular society as the question is expecting. किनशिप टाइज आर मोर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इमर्ज करके आए कि किनशिप टाइज आर अ मोर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देन आर लीगल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? इंपॉर्टेंट. तो रिसर्चर्स ने कैसे मेजर किया? मेजर्ड इट बाय हाउस होल्ड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस इन इट्स विलेज. So kinship rights are more important. Then they are putting the next condition कि researchers measured it by household duration of residence in the village. क्या find out किया? Longer residence correlated with more adoption of improved plant varieties but less adoption of chemical herbicides. तो एक तो जो longer household duration है, उससे क्या हो रहा है कि plant varieties जो improved है उनको तो adopt कर रहे हैं, less adoption of chemical herbicides है, and kinship ties are more important. तो ये दो possible outcomes हमारे पास निकल के आए. अब बस आप आसानी से choices को observe कर सकते हैं. And the security of a household land tenures depend on the strength of household kinship ties, and the duration of household residence is an indication of the strength of the household kinship ties. इसको consider करा जा सकता है, right? We can keep this statement. The ample availability of land makes security of land tenure unimportant. ये we can't say, right? So this choice goes out. Come to C. The strength of a household kinship ties is a more reliable indicator of the household's receptivity to the new agricultural technologies than is it quantity of non-land wealth, and the duration of household residence is a more reliable indicator of that household's security of land tenure than is the strength of its kinship ties. Again, this is just recycle language and no such comparison. So again, an easy elimination. अब आप अगर specific information को revisit करके question को target कर रहे हो ना, तो इस केस में आप ऐसे B और C wordy choices से recycle language से influence नहीं होगे, right? So security of the land tenure based on kinship ties tend to make farmers more receptive to the use of improved plant varieties, and security of land tenure based on longer duration in a village tends to make more farmers more receptive to use of chemical herbicides. So partly the answer choice is correct, but the later half we cannot justify.
A household is more likely to be receptive to the concept of land tenure based on legal property rights if it has easy access. Again, this condition wala point is not there, so E also goes out. So the best possible answer emerge karke aata hai for this question, that is choice A, right? Let's come to the next question. Please try this. Please read this nicely. If you want, you can revisit. The proposal mentioned is aimed at preserving rainforest by encouraging farmers in rainforest regions to do each of the following except. तो अब क्या क्या प्रपोजल में आया था, तो अगर आप पैराग्राफ पे जाओगे वापस तो कहाँ प्रपोजल था, प्रमोट अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज such as improved plant varieties and use of chemical herbicides which will increase productivity and slow deforestation. क्योंकि तुम्हारी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी फॉर न्यू क्रॉपलैंड, ठीक है? तो अब इसको समझो ना कि तुम्हें अगर कम एरिया में ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, राइट, तुम उसी से प्रोडक्टिविटी इनहांस करवाना चाह रहे हो, या तुम कह रहे हो कि भैया तुम बेटर इंप्रूव प्लांट वैरायटी को यूज कर लो या तुम हर्बिसाइड यूज कर लो, तो तुम क्या कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन की नीड को रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि कम एरिया में कम लैंड में तुम्हारा आउटपुट अचीव हो रहा है। और कैसे कहा, उसने कहा कि भैया इंप्रूव प्लांट वैरायटीज यूज करो, केमिकल हर्बिसाइड्स को यूज करो, तो उससे क्या होगा, आपका क्रॉपलैंड, जो नया क्रॉपलैंड आपको चाहिए होगा उसकी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी, तो उससे अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और अगर तुम इंप्रूव प्लांट वैरायटीज ले रहे हो, हर्बिसाइड्स ले रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो दैट्स हाउ द प्रपोजल इज ऑल अबाउट। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन को रिविजिट करना था। एंड नाउ यू कुड टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस। अडॉप्ट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, ये तो प्रपोजल बोला ही है उसने। ग्रो इंप्रूव प्लांट वैरायटीज, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड अबाउट। डिक्रीज देयर यूज, वो तो कह रहा है हर्बिसाइड के इंप्रूव यूज को बढ़ाओ। सो this is not discussed. The saying use chemical herbicides, not decrease the use. Increase their productivity, yes, that has been talked about कि productivity enhance करो. Reduce their need to clear new land, तो crop land को reduce करना, yes. तो proposal is aiming to achieve A, B, D, E, no, not decrease the use. The argument, the passage is saying that increase the use of what? Increase the use of chemical herbicides, right? सो दैट्स इट, दैट्स द सिंपल पैसेज, राइट? तो देखिए बहुत डीलेबल था पूरा का पूरा पैसेज, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है फाउंडेशन का। आई होप ये सारे सेशंस ने कंट्रीब्यूट किया आपका फियर ओवरकम करना इन आरसीज। थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो एक ब्रेक आ जाता है और हमारी रीडिंग की बहुत हैबिट नहीं होती, राइट? बट if you put the effort in the right direction, everything is manageable. So here are some important suggestions that I would like to give it to you since this is the last recording of this particular batch. तो मेरा आपको सबसे पहला suggestion रहेगा कि effort in the right direction important है, और passage का एक एक word समझने का अनरियलिस्टिक गोल अपने कंधों से हटा दीजिए, राइट? अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड एक एक डेफिनेशन रिटेन हो जाए, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है, राइट? तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी भी आपकी हैबिट फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। हम रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पैसेजेस को विदाउट मैपिंग अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए आसान पैसेजेस तो निकल जाएंगे, मुश्किल में आप फंसेंगे। और जीमैट में अगर हमें अच्छा स्कोर चाहिए तो हमें मुश्किल पैसेजेस को सॉल्व करना है, देन ओनली वील गेट अ वेरी गुड स्कोर, राइट? व्हाट वी आर टारगेटिंग। सो माय फर्स्ट सजेशन इज दैट एफर्ट एंड एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। एंड जब आप एक डायरेक्शन ले लेते हैं ना, अगर आप एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ काम करते हैं, तो आपसे आसान पैसेज भी निकलता है और मुश्किल भी निकलता है। अगर विदाउट स्ट्रैटेजी जाते हैं, आसान निकल जाता है, मुश्किल में फंसते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात है कि कई बार हम क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आसान है कि मुश्किल है, क्योंकि पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वेरी करती है, राइट? कुछ बच्चों को साइंस पैसेजेस बहुत ईजी लग सकते हैं, राइट? हो सकता है बैकग्राउंड हो। कुछ बच्चों को हो सकता है कि फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस बहुत ईजी लगते हो, बैकग्राउंड हो। मुझे हो सकता है फाइनेंस पैसेजेस बहुत ट्रिकी लगते हो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, या मैं बहुत रेलेवेंट तरीके से एसोसिएटेड नहीं फील करती उस इन्फॉर्मेशन पे, राइट? तो मेंटल बैरियर्स मत बनाइए, बट बी ओपन टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी, सो दैट हेल्प्स यू बी मोर प्रोडक्टिव इन लेसर टाइम। आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, राइट? सो definitely get into mapping. This will be very effective in making the journey of solving RCs easier for you. That's the first suggestion. My second suggestion is please pay a lot of attention
ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो वापस बोल रही हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, क्वेश्चन को राइटली समझिए, क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चे सुन सुन के समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देनी है, बट हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शंस देखते समय फिर क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन को अलाइन करते हुए फिर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। कई बार अगर आप एक और स्टेप कर लें, वेर यू आर प्रिडिक्टिंग द आंसर, सो बिफोर यू टेक अ लुक एट द ऑप्शंस, इफ यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द आंसर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे हम रिविजिट करते हैं, जैसे अगर आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा, मैंने रिविजिट किया, अगर हम रिविजिट नहीं करेंगे तो हम देख सकते हैं कि पॉसिबली, क्योंकि प्रेशर है, आप जानबूझ के इजी टाइप माइंडसेट से क्वेश्चंस करोगे, आप कहोगे क्या ही है मैम, ऐसी गलती थोड़ी करेंगे। पर कई बार हम देखते हैं, हाँ हर्बिसाइड की बात तो हुई थी, हम पिक करके आ जाते हैं, जबकि बात हुई है यूज ऑफ हर्बिसाइड की, डिक्रीज द यूज की बात नहीं हुई। ऐसे डिक्रीज दिखता ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि इतना प्रेशर है, द क्लॉक इज टिकिंग, राइट। आप किस माइंडसेट से आए हैं, किस स्लॉट में पेपर दे रहे हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जो आपका एग्जाम एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा स्ट्रेस लेकर आता ही है, राइट। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइटली, revisit if needed, and that's a wise thing to do. But of course the catch is you should know where to go back. ऐसे randomly passage को नहीं explore करना, and revisiting only would be for specific questions, and keep the question in your mind while you are taking a look at the options. और अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो आंसर, एंड आंसर प्रिडिक्शन शुड बी वेरी इजी। अच्छा, हमने जैसे हमने कहा कि सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या जब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं, तो प्रपोजल की क्या क्या बात है कि भैया तुम एक कम एरिया को ज़्यादा उपजाऊ बना दो, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो तुमको ज़्यादा लैंड को नहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा, कम एरिया में तुमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो उससे डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज द आइडिया। बस आपने प्रपोजल को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, एंड देन यू कैन टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस, राइट। तो हिंदी में प्रिडिक्ट कर लीजिए, अगर कई बार हमारी रीजनिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी जो एक्चुअल नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें कंफर्टेबल होता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू शुड नो व्हाट द आंसर शुड डू बिफोर you take a look at the options, right? Revisit, predict the answer, and I'm just adding the second step, revisit if needed. तो ये कई बार आपको ज़रूरत लगती है, और स्पेसिफिक्स के लिए तो यू शुड गो बैक। माई आइडिया इज यू शुड गो बैक, बट अंटिल अनलेस यू लाइक सुपर कॉन्फिडेंट कि मैम ज़रूरत ही नहीं है जाने की, बाय हार्ट पैसेज समझ में आ गया, योर कॉल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये बार बार फोकस करती हूँ जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं, एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन क्रिएट किया वो कैसा सोच रहा था, सेम नहीं है, राइट। कई बार आपको ऐसा लगेगा ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ये जज नहीं रहा एज अ करेक्ट आंसर, बट यू हैव टू सी बाकी हो सकते हैं क्या। कैन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बी सी डी तो का स्कोप ही नहीं था, बिकॉज वी कुड फाइंड द फ्रेजेस विच वर मेकिंग द चॉइस गो रॉन्ग। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट आर गोल शुड बी टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ones, जो बचेगा वही करेक्ट आंसर है, right? So please keep this in mind that what works for us is elimination, right? इन ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन हमने डिस्कस किए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था एक्सट्रीम आंसर्स को एलिमिनेट करिए, बहुत बार देखेंगे कंपैरिजन और एक्सट्रीम, तो जीमैट का फेवरेट है, राइट। कब से, मतलब इतने साल तो मुझे ही हो गए पढ़ाते हुए, बीन टीचिंग जीमैट सिंस लाइक 2016, तो तब से तो मैं देख रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में ट्रैप क्रिएट करना हो, एक्सट्रीम और कंपैरिजन ले आता है, राइट। ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिसाइकल लैंग्वेज भी दिखता है आपको, जहाँ पे आपको थोड़े से फ्रेंडली वर्ड्स दिखते हैं। जो करेक्ट आंसर होता है वो यूजुअली दो चीज़ें, एक तो एविडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो आंसर शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो पहला पॉइंट ये। और जो करेक्ट आंसर होता है यूजुअली पैराफ्रेज्ड होता है, दैट मीन्स इट्स पुट टुगेदर इन डिफरेंट वर्ड्स, राइट। सो एक्सट्रीम, कंपैरिजन, रिसाइकल्ड, और एक नेगेशन या रिवर्सल, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग और द टेक्स्ट इज स्टेटिंग, दैट कैन ऑल्सो बी द ट्रैप। तो ये चार का तो ध्यान रखिएगा। बाकी हमने बहुत सारे ट्रैप्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्लास में डिस्कस किए थे, आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये पॉइंटर्स अपने सामने रख के करिए, तो आपका फोकस रहेगा कि यार इन पे ध्यान देना है, राइट। अब चेक कर लीजिए कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के ये टूल्स बताया मैम ने, तो ये कौन सा मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो जब आप सॉल्व भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट आएगा। ऐसे देखा ना आपने कि कई बार हमें 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे 4 पैसेज करें, चाहे दिन का 1 पैसेज करें, पर उसका ना अच्छे से समझ के, ट्रैप समझ के, पिटफॉल समझ के, एरियाज ऑफ स्ट्रगल समझ के,
पॉइंट्स टू कंसिडर समझ के करते हैं ना, तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है, राइट? सो फॉर जीमैट, क्योंकि अगेन वी हैव टाइम crunch, we have lot of other responsibilities. Most of us, like I said, are working professionals. Some of us might be married also, right? So we have so many areas where we need to focus. तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि भाई हम तो आराम से 10 पैसेज करेंगे, 10 बार गलतियां करेंगे, समझेंगे। एक ही पैसेज करिए, बट अच्छे से करिए, ताकि आप उससे बहुत सारी लर्निंग्स ले सकें और यू कैन अंडरस्टैंड द फैब्रिक ऑफ द एग्जाम। और मेरा सिंसियर सजेशन है कि जब हम जी मैट की ऑफिशियल गाइड करते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने कहा था कि ओजी को कैसे आपको पढ़ना चाहिए। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आप ओजी जब भी करें तो उसके, क्योंकि ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता है, सवाल बहुत अच्छे, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे हैं, तो ऑफिशियल गाइड तो ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? सो आई होप यू फाउंड द जर्नी interesting, and I hope the sessions could really help you overcome the fear of RCs. Ultimately, it's all about how sincerely you put an effort, and GMAT is definitely an easy exam to crack if you are putting the effort in the right direction. So thank you so much for joining and watching all these videos. My best wishes are there with you. All the best. Take good care of yourself.